My dear friends and my dear students, welcome to my channel. Today's topic is writing application, especially to the principal of your institution. My dear friends, it is very important question in your annual examinations as well as in your house examinations. Almost every examination of your school, this question is set. How we should write an application? I am giving this demonstration for you. First of all, nowadays student has to write his name and his address. So here is Aryan Sharma, student, 338 मॉडर्न कॉलोनी अमृतसर का रहने वाला है, मॉडर्न कॉलोनी है और 338 हाउस नंबर. इन दिस वे यू कैन राइट योर एड्रेस. आफ्टर दैट date is there. Date is also mentioned nowadays. We will start with month May 23rd 2020, full stop. Now there is a salutation to your principal. दो principal. Next नीचे की लाइन में नेम ऑफ द स्कूल, उससे नीचे आपका सिटी आ जाएगा. स्कूल अमृतसर, सिटी आ गया. Nowadays there is no comma after principal, no comma after school or after city. You will put full stop. Some of the students, they follow the old way of writing. There used to be comma after principal, comma after school and full stop after city. अगर आपकी प्रिंसिपल लेडी है तो यू विल राइट डियर मैडम. अगर आपके प्रिंसिपल महोदय जेंट्स हैं तो यू विल राइट डियर सर. हाउ यू विल स्टार्ट दिस एप्लीकेशन? हियर आर द sentences. Respectfully it is stated that I am student of your school in class. आगे आपने जो क्लास है वो लिख देना है और सेक्शन लिख देना है. मैंने 10th क्लास सेक्शन सी लिखा है. प्यारे बच्चों, पहले हम लिखा करते थे I beg to say. The gone are the days. We have not to beg. There is a respect for the principal. I have started it respectfully. It is stated. ये निवेदन किया जाता है, ये आपको कहा जाता है बड़े आदर मान सत्कार के साथ. नेक्स्ट, second stanza. I am writing it for you. I am the class captain and head boy of Azad House. I always score more than 95% marks in house exams and annual exams. I am the captain of school team. I also got selected for junior national cricket team to go abroad. I am also a good orator. All the teachers speak high of me. In section A of 10th class, the students are enrolled with 90% marks. I wish to change my section to A and I am eligible for 2. So kindly do a favor. प्यारे बच्चों, इस एप्लीकेशन में स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसका सेक्शन चेंज कर दिया जाए. लास्ट जो लाइनें हैं, फॉर एक्ट ऑफ दिस काइंडनेस I shall be very thankful to you. उसके नीचे आप लिख सकते हो if you wish with deepest regards. उससे नीचे वाली लाइन में लाइनें ये बदलनी पड़ेंगी आपको. Yours obediently,
For your kind information, I want to tell you that many of the information given here, many of the sentences I have written here, you should never change it. मैंने ऊपर जो है नेम ऑफ द स्टूडेंट, हिज रेजिडेंस, हिज और हर सिटी एंड डेट, ये आपको लिखनी ही है. द प्रिंसिपल स्कूल अमृतसर, डियर सर और मैडम, ये भी आपको हर एप्लीकेशन में लिखना है जो कि आपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिखनी है. इसके बाद डोंट चेंज दीज आल्सो sentences. Okay, you will write these two sentences in every application. हर एप्लीकेशन में आप शुरुआत इसी से करोगे. Respectfully, it is stated that I am student of your school in 10th section C. अगर आप 10th में नहीं पढ़ते, कौन सी क्लास में पढ़ते हो वो लिख दोगे, जिस सेक्शन में पढ़ते हो वो लिख दोगे. सो हर एप्लीकेशन में आपने ये लिखना है. इट मीन्स कि ऊपर की 3 लाइनें, चौथी ये और ये लाइनें आपको कभी भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं. देन वी शुड कम डाउन. फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू विद डीपेस्ट रिगार्ड्स, योर्स ऑबिडेंटली. These 3 sentences very important और ये आपने लिखने ही लिखने हैं. इसका अर्थ ये हो गया, अपना एड्रेस आपको मालूम है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है. ये 4 लाइनें, 4 और 4 8, 10 और 3 13. एप्लीकेशन में 13 लाइनें आपने आज ही याद कर लेनी है, कंठस्थ कर लो और इसमें कोई भी जो है गलती होने की संभावना नहीं होनी चाहिए. प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो फर्स्ट एप्लीकेशन मैंने आपको कराई है वो चेंज ऑफ सेक्शन है. और इसमें आपने अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है. जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें 90% sentences I am. For example, I am the class captain. I always score 95% marks. I am the captain of the school. ठीक है. I am also good orator. ठीक है. So I am eligible too. मैं हूँ. I am से सेंटेंसेस शुरू किए. ये एप्लीकेशन चेंज ऑफ सेक्शन की थी. और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि राउंड अबाउट 95% मटेरियल आप इस्तेमाल कर सकते हो जब आपने 2-3 और मैं एप्लीकेशन बताऊँगा वो भी लिखो तो यू कैन राइट 95 ऑफ द मटेरियल इन दिस. व्हाट आर दोज applications should I have it? For example, अगर आपने फुल फी कंसेशन की एप्लीकेशन लिखनी है, रिक्वेस्ट फॉर फुल फी कंसेशन, रिक्वेस्ट फॉर फुल फी कंसेशन. प्यारे बच्चों, पहले हम कहा करते थे माई फादर इज़ ए पुअर मैन, ही इज़ ए पियन. डोंट से सच थिंग्स फॉर योर फादर, ही इज़ ए पियन. ओपनली बच्चों के पेरेंट्स बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं और वो उनको चपरासी कहने लग जाते हैं. किस लिए? कि सिर्फ फीस माफ़ करवानी है. बच्चों, इसके लिए आप कैसे लिख सकते हो? आई एम डिक्टेटिंग इट. हमने लिख दिया ऊपर प्रिंसिपल या दूसरे तो लिख दिए. रिस्पेक्टफुली इट इज स्टेटेड दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ये मैंने कहा था.
ये लाइनें भी आप लिख सकते हो इसमें। These line you can write it 100%. I am the class captain and head boy of Azad House. I always score more than 95% in house and annual exams. I am the captain of school team. I also got selected in junior national cricket team to go abroad. I am also a good orator. All teachers speak high of me. ठीक है, ये दो लाइनें जो हैं हमने कट कर देनी है। ये इसमें मत लिखो कि मैं सेक्शन चेंज करना चाहता हूँ, इसकी जगह पे क्या लिख दोगे, दो लाइनें लिखने की ज़रूरत है और आपकी एप्लीकेशन बन जाएगी। ये दो लाइनें क्या लिखनी है, ऑल स्पीकर स्पीक हाई ऑफ मी। इसके बाद आपको यहाँ क्या लिख देना है, ओके, कि आप लिखोगे कि स्कूल के नियमों के मुताबिक जो बच्चा 90% मार्क्स ले जाता है उसकी फ़ीस माफ़ कर दी जाती है और मैं एलिजिबल हूँ, मेरी फ़ीस माफ़ की जाए। बच्चों, फ़ीस माफ़ करवाओ अपनी लियाकत पर, ठीक है। तो क्या लिखोगे, इसके बाद ऑल टीचर्स स्पीक हाई ऑफ मी, सभी टीचर्स मेरे बारे में अच्छा बोलते हैं। तो क्या करोगे, यहाँ पे ही चलो लिख देता हूँ मैं, हेयर आई राइट टू मोर सेंटेंसेस। यहाँ मैं जब 2 सेंटेंस लिखूंगा तो आपकी फुल फी कंसेशन हो जाएगी। क्या है, आई एम ऑल्सो ए गुड ऑरेटर, ऑल टीचर्स स्पीक हाई ऑफ मी, according to school rules, students with 90% marks is entitled या entitled for full fee concessions, full fee concessions, ठीक है, full fees concessions। So I am also eligible for, eligible माने योग्य, for this, ठीक है। kindly grant me full fee concession, मेरी पूरी फीस माफ की जाए, grant me full fees concession। प्यारे बच्चों, फी इज ऑलवेज प्लूरल, फीस कहते हैं हम इसे, FWS। इसको कभी सिंगुलर मत लिखना क्योंकि स्कूल में कई तरह के फंड्स लिए जाते हैं। हाँ जी, तुम्हारे पेपर फंड है, हाउस का फंड है, योर बिल्डिंग फंड्स हैं, ट्यूशन फंड्स हैं, उन सभी को मिला के फीस बनती है। तो सो ऑलवेज राइट फीस। सो बेटे, ये 3 लाइनें अलहदा लिखने के साथ ही आपकी फुल फी कंसेशन की एप्लीकेशन हो गई है, ठीक है। अब आप चाहते हो, आपके लेक्चर शॉर्ट हो गए हैं, हाँ जी, आपके क्या हो गया, लेक्चर शॉर्ट हो गए हैं। आप प्रिंसिपल से कहते हो कि लेक्चर मेरे जो है शॉर्ट हो गए हैं, प्लीज़ मेरे लेक्चर पूरे कर दो। स्कूलों में कईयों में लेक्चर शॉर्ट हो जाते हैं, अगर 75% से कम हाजिरी हो तो लेक्चर शॉर्ट हो जाते हैं। उनको कैसे लिखना है। तीसरी एप्लीकेशन क्या हो गई, रिक्वेस्ट टू condone your lectures को माफ करवाने के लिए
या पूरे करवाने के लिए शब्द इस्तेमाल होता है कंडोन। तो प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट कर रहे हो काइंडली कंडोन माय लेक्चर्स, ठीक है। उसको लिखने के लिए आपको वही जो नीले लाइन में मैंने लिखी हुई लाइनें हैं उनको थोड़ा सा चेंज करना है, 2 लाइनें सिर्फ लिखनी है और आपका एप्लीकेशन के अपने लेक्चर्स पूरे करवाने के लिए पूरा हो जाएगा। हियर आई एम राइटिंग इट। हाँ जी, बातें हमने लिख दी हैं, अपने बारे में बता दिया है, ठीक है। अच्छी अच्छी बातें जो आप में गुण हैं वो आप लिखोगे, क्योंकि लेक्चर्स आपने प्रिंसिपल से लेने हैं। हाँ जी, मैं क्लास का मॉनिटर हूँ, मैं हाउस जो है आज़ाद हाउस का कैप्टन हूँ, ठीक है। 95% से मार्क्स ज़्यादा लेता हूँ हर एक एग्ज़ाम में, मैं अच्छा खिलाड़ी हूँ, ठीक है। और क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट का कैप्टन हूँ, अच्छा वक्ता हूँ। फिर आपने कोई रीज़न देना है कि आपके लेक्चर क्यों कम हुए, लेक्चर आपके क्यों कम हुए, आपको रीज़न देना है, ठीक है। तो सो आप उसके लिए रीज़न दोगे, ठीक है। तो रीज़न क्या देना है, आप अच्छे क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हो और स्कूल के जो कैप्टन हो, ओके। तो आप क्या करोगे, आपने कहना है कि मैं एक सिलेक्ट हो गया कैंप अटेंड करने के लिए क्रिकेट का, क्योंकि क्रिकेट के आप खिलाड़ी हो, और 1 महीना मैं स्कूल से बाहर रहा और उस वक्त मेरे जो है लेक्चर हो गए। आपने रीज़न भी कोई देना, अच्छा देना है, जो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में अच्छा बोले। हाँ जी, आप अगर खुद ही बोल रहे हो तो अपने बारे में बुरा क्यों बोलो बच्चों, ठीक है। तो आप आगे क्या लिख दोगे, ऑल टीचर्स स्पीक हाई ऑफ मी, सभी टीचर मेरे बारे में बहुत ही अच्छा बोलते हैं, ठीक है। आई गॉट सिलेक्टेड फॉर 1 month ट्रेनिंग कैंप, 1 month ट्रेनिंग, कौन सा कैंप, क्रिकेट कैंप, ठीक है। आई गॉट सिलेक्टेड फॉर 1 month ट्रेनिंग क्रिकेट कैंप to be held in Delhi, ठीक है। और उस दौरान माई क्लास इंचार्ज डिड नॉट नो इट, शी मार्क्ड मी एब्सेंट, माई क्लास इंचार्ज did not know it, she marked me absent, marked me absent। तो क्या हुआ, my lectures are short, ठीक है। काइंडली कंडोन माय लेक्चर, कंडोन माय लेक्चर्स, लीजिए, इट इज ए गुड गेस्चर। आपने 3 लाइनें लिखी हैं, एक एप्लीकेशन आपकी बन गई है। ऊपर के सारे वही है, नीचे वही लिखना है, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, हाँ जी, फॉर एक्ट ऑफ दिस काइंडनेस, ओके। नाउ लेट्स कम टू अगेन वन मोर एप्लीकेशन। हाउ कैन यू राइट इट, आपने अपना, आप 12th में पढ़ते हो, आप 11th में पढ़ते हो, 10th नहीं लिख सकते, तो आपने अपने ग्रुप चेंज करवाना है। आप आर्ट्स से जो है
कॉमर्स में जाना चाहते हो, यू वांट टू शिफ्ट योर स्ट्रीम, हाउ कैन यू राइट? तो कैसे है? चेंज ऑफ स्ट्रीम फ्रॉम मेडिकल टू कॉमर्स। ठीक है, तो आपको रीजन चाहिए चेंज जब करना, तो बच्चों उसमें भी आप तकरीबन यहाँ तक जरूर लिख दोगे, ऑल टीचर्स स्पीक हाई ऑफ मी। तो वी मस्ट हैव सम रीजंस। तो व्हाट विल यू राइट? जरा सोचो, क्या आप लिख सकते हो? अभी आप लिख सकते हो कॉमर्स क्यों पढ़ना चाहते हो। अगर आप मेडिकल से नॉन मेडिकल में जाना चाहते हो तो क्यों जाना चाहते हो? बेटे प्रिंसिपल के आगे तो हमेशा रीजन चलेगा। हाँ जी, आई टेल यू कि कॉमर्स इज नॉन फॉर मैनेजरल पोस्ट्स। ठीक है, टू बिकम CA, ओके, टू डू MBA लाइक दिस। अच्छा, तो आप कह सकते हो कि मैं IAS करना चाहता हूँ। IAS में जो है कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं वो मेरे बहुत फेवरेट हैं। MBA करने के बाद जहाँ पे मुझे मैनेजमेंट की ट्रेनिंग पहले से मिल जाएगी, तो मैं जो हूँ आई वांट टू गो फॉर MBA। ठीक है, तो आफ्टर दैट आई वांट टू बी एन IAS ऑफिसर। ठीक है, ओके। तो हाउ विल यू राइट? आपने सब कुछ बता दिया कि आप किस स्तर के, किस प्रतिभा के विद्यार्थी हो, तो क्या लिखोगे? पहले तो आप कहोगे आई वांट टू चेंज माई, टू चेंज माई स्ट्रीम। कहाँ से कहाँ जाना चाहते हो? फ्रॉम मेडिकल टू कॉमर्स। ये देखो यहीं से आपने उतार देना है, फ्रॉम मेडिकल टू कॉमर्स। ओके, आई वांट टू चेंज माय स्ट्रीम फ्रॉम मेडिकल टू कॉमर्स। आई वांट टू बी an IAS officer, commerce will certainly help me a lot. Kindly allow me या permit me to change my subjects. लो बेटे, आपने 3 सेंटेंस लिखे हैं और एक एप्लीकेशन आपकी बन गई। सो व्हाट आई वांट टू बी, ये जो कॉमन लिखने वाले सेंटेंसेस हैं उनको बहुत बखूबी याद कर लीजिए। कई जगह पे मैंने आपको कुछ डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस दिए हैं, लेकिन एक बार याद कर लेने से और हर जगह लिखने पर इट विल गिव यू द गुड इम्प्रेशन। यू विल कम इनटू द कैटेगरी ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि फॉर एक्ट ऑफ दिस काइंडनेस आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू। इसके लिए सीधा साधा सेंटेंस भी लोग लिखते हैं, बच्चे लिख जाते हैं थैंकिंग यू, लेकिन इस सेंटेंस की जो है प्रभाव इवेल्यूएटर पर, पेपर देखने वाले पर, आपके अध्यापकों पर अच्छा पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट एप्लीकेशन राइटिंग। मुझे ये पूरा
जो आश्वासन है, मुझे पूरी उम्मीद है you must have relished my talk about application writing. Thank you very much. So nice of you. मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, do subscribe it for having more educational videos. Thank you very much. So nice of you.